Hello students, good evening. How you all have been doing? Today in this video we will be reading about the history of Java programming language which we had left in the very first class, and also we will try to complete another topic, features of Java programming language. In the first class we have covered the topic history of Java programming language, but we have just started that topic, and there are two more there are some more contents left which we will complete here, because the history of Java programming language is a very important topic. Every time exam repeats that topic, and so we will read the same topic again, read the left content of that topic in this video. So when you all will be watching this video, you need to open this content as I am scrolling in front of you, and you have to scroll on the 35th page of this e-content. This content, Java history. So last time I have discussed lot of things, lot of information related to Java history, but still milestone of this Java history was left to discuss, and so we will cover in this video. And as I think many students were unable to join the class last time, so I will try to give a brief of this topic again. And also I would like to tell you that in the last class we had covered with various topics. I will make you a glance over that. Last time we have covered what is Java programming language. Java programming language is a object oriented programming language, and what is the advantage of Java programming language over C and C++. We have also discussed about that Java programming language is based on C and C++, but we had made this language simple and portable. Got means C and C++ is the base of this language, but there are various complexities at various places on in C and C++ language, which we had which this team who had designed Java programming language had decided to remove that complexities and make the language simple and easy to use. So as you are looking on your screen, that it is written that Java is a general purpose object oriented programming language developed by Sun Microsystems of USA in 1991, originally called Oak by James Gosling, one of the inventors of the language. ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है तो यूएसए की एक टीम ने बनाया था. सन माइक्रोसिस्टम्स जो है तो इनकी एक टीम थी, और इस लैंग्वेज को स्टार्टिंग में ओक बोला जाता था. ये नाम जेम्स गॉसलिंग ने दिया था. जेम्स गॉसलिंग जो थे, ये जो टीम थी उनके एक मेंबर थे. ठीक है, जो जिन्होंने इस पूरे लैंग्वेज को डिज़ाइन किया है, उनके उन्हीं में से एक मेंबर थे. ठीक है, जावा जो है तो स्टार्टिंग में जावा का एम था कि इस लैंग्वेज को बनाने का एम था कि जो होम अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कंज्यूमर यूज़ करता है, उसको डिज़ाइन बैकग्राउंड में उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए इस लैंग्वेज को बनाया गया था. तो इनका मेन बहुत ही जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत ही स्ट्रांगली डिफाइन करता था सिंप्लिसिटी, पोर्टेबिलिटी एंड हाईली रिलायबिलिटी को. मीन्स इनका एम था कि हम लैंग्वेज जो भी बनाएंगे वो बहुत ही सिंपल बनाएंगे, पोर्टेबल बनाएंगे और रिलायबल बनाएंगे. ठीक, उसके बाद बताया गया है जावा हिस्ट्री में कि ये लैंग्वेज जो है सी और C++ पे बेस्ड है, और
बट जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वहाँ पे रिलायबिलिटी और पोर्टेबिलिटी लैक करती है, तो उस लैकिंग को यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे इस लैंग्वेज में। और जो जावा और जावा प्रोग्रामिंग सी और सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करके जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको सिंपल, रिलायबल, पोर्टेबल और पावरफुल लैंग्वेज बनाएंगे, ऐसा इनका एम था। ये तो था इसका एक ब्रीफ टाइप का। अब देखेंगे कि ईयर वाइज इन्होंने क्या चेंजेस लाए हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किस तरीके से इन्होंने एक के बाद एक करके अपनी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया है। तो 1990 में सन माइक्रोसिस्टम ने डिसाइड किया टू डेवलप स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट कुड बी यूज टू मैनिपुलेट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मीन्स जो आप जो होम अप्लायंसेस उस जमाने में जो यूज़ करते थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो ऐसे थे कि एक बार जो भी जिस तरीके से उस इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया गया है उसके बाद उसमें कोई भी आप होम लेवल पे अपने घर पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाते थे, कोई भी ऑटोमेशन नहीं था उसमें। जैसा आपको डिवाइस दे दिया, एक फीचर है तो वो उस एक फीचर से ही आप उसको चलाते रहते थे। बट इनका एम था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हैं उसमें हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू ऐसे फीचर्स देंगे कि जो कस्टमर है वो घर पे उन फीचर्स को चेंज करके उसी डिवाइस को अलग तरीके से यूज़ कर सकता है। यही ऑब्जेक्टिव के साथ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया जा रहा था कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिज़ाइन करने के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इनका ये एम था। अ टीम ऑफ सन माइक्रोसिस्टम प्रोग्रामर्स हेडेड बाय जेम्स गॉसलिंग वाज फॉर्म टू अंडरटेक दिस टास्क। ठीक है, तो एक सन माइक्रोसिस्टम प्रोग्रामर्स की टीम थी जिसके हेड लीडर जो थे उस टीम के जेम्स गॉसलिंग थे। उन्होंने इस टास्क को करने के लिए अपने अंडर लिया। 1991 में आफ्टर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग द मोस्ट पॉपुलर, इन्होंने जो C++ का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर था उस फीचर के पावर को देखा, उस फीचर के को ब्रॉडली आइडेंटिफाई किया कि इस फीचर के थ्रू क्या क्या किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने इस लैंग्वेज को अनाउंस किया, उसका नाम दिया ओक। 1991 में इन्होंने एक ग्रीन प्रोजेक्ट टीम नाम की एक टीम बनाई और डिमॉन्स्ट्रेटेड, और इस टीम का एप्लीकेशन था ऑफ देयर न्यू लैंग्वेज टू कंट्रोल अ लिस्ट ऑफ होम अप्लायंसेस। और इस लैंग्वेज का एप्लीकेशन होगा कि जो आपके घर के अप्लायंसेस है उसमें बहुत सारे कंट्रोलिंग फीचर्स होंगे। ठीक है, और ये कंट्रोलिंग फीचर्स जो है टच स्क्रीन के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स ये जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि हम होम अप्लायंसेस में को थोड़ा सा और भी इंटरैक्टिव, थोड़ा सा और भी अच्छा बनाएंगे और भी एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करेंगे जिसको जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है खुद से हैंडल करेगा। कंज्यूमर जो है खुद से हैंडल करेगा, तो और किसके थ्रू हैंडल करेगा, टच स्क्रीन के थ्रू हैंडल करेगा। तो इसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तो वो जो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी उसके लिए उन्होंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। ठीक है, अब 1993 में वर्ल्ड वाइड वेब आया। पहले इंटरनेट टेक्स्ट बेस्ड था, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब आया तो इंटरनेट जो है तो ग्राफिकल रिच इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्पफुल था। उसके बाद द ग्रीन प्रोजेक्ट टीम केम अप विद आइडिया ऑफ डेवलपिंग वेब एप्लेट्स teeny program using the new language and that could run on all type of computers connected on internet। तो ग्रीन इन्हों जैसे वर्ल्ड वाइड वेब आया तो जो ग्रीन प्रोजेक्ट टीम इस लैंग्वेज को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया था, उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से वेब एप्लेट्स बनाएंगे। वेब एप्लेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे एप्लीकेशंस, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे दैट कोड, जो कि जिस भी कंप्यूटर में इंटरनेट होगा, जिस कंप्यूटर में इंटरनेट होगा वो उन सभी कंप्यूटर्स में क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। ठीक है, उसका 1994 में टीम ने डेवलप किया एक वेब ब्राउज़र। उस वेब ब्राउज़र का नाम था हॉट जावा, और जिसका एम था कि जो एप्लेट्स इन लोग तैयार करेंगे, बनाएंगे, उन एप्लेट्स को इन ब्राउज़र में क्या करेंगे, रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और हॉट जावा ने
जैसे ही हॉट जावा ब्राउज़र इन्होंने क्रिएट किया, बनाया, तो उन्होंने उनकी जो नई लैंग्वेज उसकी पावर और भी ज़्यादा वाइड एरिया में दिखने लग गई। मीन्स और भी वो उन्होंने इमेजिन किया कि हम और भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जैसा कि हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े काम कर सकते हैं इस लैंग्वेज को और ब्राउज़र की दोनों के कॉम्बिनेशन से, दस मेकिंग इट इंस्टेंटली पॉपुलर अमंग द इंटरनेट यूज़र, जिसकी वजह से जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ जो जो लोग इंटरनेट यूज़ करते थे उनके बीच। ठीक है, अब 1995 में ओक वॉज रीनेम्ड जावा ड्यू टू सम लीगल स्नैक्स। कुछ दिनों के बाद उन सभी टीम ने किसी रीज़न से जो ओक नाम दिया था उसको चेंज करके उसका नाम जावा रख दिया। ठीक है, जावा कोई एक्रोनेम नहीं है, मीन्स किसी भी चीज़ का एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये सिंपली एक नेम है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, मेनी पॉपुलर कंपनीज इंक्लूडिंग नेटस्केप एंड माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस देयर सपोर्ट टू जावा। जब देखा कि जावा जो है तो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है इंटरनेट में यूज़र्स के लिए और बहुत ही मीन्स फेमस हो रहा है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी नेटस्केप और माइक्रोसॉफ्ट नाम की, इन्होंने भी अनाउंस किया कि हम जावा को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। उसके बाद 1996 में जावा एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ नॉट ओनली एज अ लीडर फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग बट ऑल्सो एज अ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फिर 1996 में जावा का इतना ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हुआ कि ये इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए एकदम लीडर की तरह हो गया। मीन्स जो पुरानी लैंग्वेजेस थी उनके कंपेयर में ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ, इसलिए एज अ लीडर ये इवॉल्व हुआ। बट सिर्फ एज ए लीडर नहीं, साथ ही साथ ये किसी भी तरह की जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग करनी है, मीन्स इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए तो लीडर था ही, पॉपुलर था ही, बट साथ ही साथ किसी भी तरह की जो प्रोग्रामिंग करना था उसके लिए भी ये बहुत ही पॉपुलर हो गया। ठीक है, उसके सन ने रिलीज़ किया जावा डेवलपमेंट किट 1.0 1996 में। जावा डेवलपमेंट किट हम शायद मनोज सर आप लोग को पढ़ाए होंगे या फिर मैं ही पढ़ाऊँगी अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो जावा जो डेवलपमेंट किट है, ये एक किट का मतलब क्या होता है, कोई भी किट आपके पास आती है उसका क्या मतलब होता है, मीन्स उसमें कंप्लीट एक ऐसा टूल, किट का मतलब होता है उसमें ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स जो आपके उस लैंग्वेज को कंप्लीट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में क्या हो, हेल्पफुल हो, उसको क्या बोलते हैं, किट होते। तो सॉफ्टवेयर ने जावा डेवलपमेंट किट जो है तो 1.0 रिलीज किया 1996 में। वो किट में बहुत सारे टूल्स थे जो टूल्स बहुत ही हेल्पफुल थे फॉर क्रिएटिंग द एनवायरमेंट टू एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन मेड इन दिस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, 1997 में एक नया वर्जन जावा डेवलपमेंट किट का लाया गया 1.1। 1998 में सन ने रिलीज़ किया जावा 2 विद वर्जन 1.2 एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट SDK 1.2 लाया। उसके बाद फिर जो है तो 1999 में रिलीज़ किया जावा 2 प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन J2SE एंड एंटरप्राइज एडिशन J2EE। ठीक है, अब 2000 में जो J2SE एंड जो SDK था जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट था, मीन्स ये जो किट स्टार्टिंग में क्रिएट हुआ है, आप लोग SDK और जब भी आप लोग का असाइनमेंट है कि आप लोग जब भी आएंगे तो जावा डेवलपमेंट किट और जो SDK है इसका पूरा इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आएंगे। ठीक है, तो 2000 में उसका एक नया वर्जन, फिर 2002 में उसका नया वर्जन, फिर 2004 में जो है तो 5.0 आया। इसके बाद भी 2004 के बाद भी शायद ये बुक तभी प्रिंट हुई होगी इसलिए ये लास्ट है। उसके बाद भी बहुत सारे नए फीचर्स नए इसमें अपडेशंस आए होंगे इस किट में। जो जावा का जो इन्वायरमेंट है, उस सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड जो पूरा फीचर होगा बहुत सारा चेंज हुआ होगा और अपडेशन हुई होगी बहुत, जो इस बुक में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आप एग्ज़ाम में इतना भी लिख देंगे तो बहुत है। तो आपको एग्ज़ाम में जब भी जावा हिस्ट्री आएगा तो जो ऊपर का जो आपका पैरा है
उसको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, उसके बाद फिर नीचे में जो माइलस्टोन्स लिखे हैं उसको बहुत ही सिस्टमेटिकली लिखेंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए, CS वीडियो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, एक समझ बैठाने के लिए कर रहे हैं, एक जो आप सपोर्ट करेगा बहुत आगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इस लैंग्वेज में। तो इसको सिर्फ एग्ज़ाम बेसिस में और सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने के बेसिस में ना पढ़ें, इसको समझते जाएं कि ये क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, ठीक है। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो मैं एक ऑनलाइन क्लास लूँगी, वहाँ आप लोग पूछ लीजिएगा मेरे से, ठीक। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक कवर करेंगे, जावा फीचर्स, ठीक है। फीचर्स का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीचर्स? फीचर का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टीज, ये कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, ये कैसा बिहेव करता है, इसमें कौन कौन से गुण हैं, समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है फीचर्स। तो देखिए आपको स्क्रीन में दिखेगा कि इसमें बहुत सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट एंड सिक्योर, डिस्ट्रीब्यूटेड, फैमिलियर, सिंपल एंड स्मॉल, ठीक है, मल्टी थ्रेडेड एंड इंटरैक्टिव, हाई परफॉर्मेंस, डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल, ठीक है, ईज ऑफ डेवलपमेंट। हम लोग इतने ही फीचर्स पढ़ेंगे, बाकी जो फीचर्स है वो इतने फीचर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने फीचर्स काफ़ी हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नियरली 10 फीचर्स हम पढ़ेंगे और आप एग्जाम में इतने ही फीचर्स पढ़ेंगे। और अगर नोट्स मीन्स नोट्स बनाते जाइए आप लोग और इन फीचर्स को लेके ही आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो मैंने बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीचर्स। फीचर्स मीन्स what is the behavior of your language, how your language is behaving, what are the things that are involved in your language। समझ में आ रहा है? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी लैंग्वेज में दिखती हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो, जिन बिहेवियर्स को आप यूज कर सकते हो यूजिंग, जब आप उस लैंग्वेज को आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तब, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड है। अभी तक आप जब सी पढ़ते थे, जब C++ पढ़ते थे, तो यू वुड हैव फाउंड दैट C एंड C++ बोथ आर ईदर कंपाइल्ड और इंटरप्रिटेड, बट नॉट बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड। Means as I know that C and C++ both are compiled languages. Means once we create its source code, we compile this, and as we compile, then after we run that. Got my point? But Java programming language is both compiling and interpreting language. Here we are doing both processing. We are doing compiling first and then interpreting next. So जावा लैंग्वेज जो है तो कंपाइल्ड है और इंटरप्रेटेड है। इसमें क्या होता है कि जो है तो ये 2 स्टेज सिस्टम है। फर्स्ट जावा कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, आपके सोर्स कोड को, सोर्स कोड का मतलब होता है जो लैंग्वेज आप जो भी स्टार्टिंग में जो आप प्रोग्राम लिखते हैं ना, जैसे सी में कोई प्रोग्राम बनाते हैं मेन फंक्शन की हेल्प से और फिर उसको सेव करते हैं तो .c के नाम से सेव करते हैं, और जब C++ लैंग्वेज बनाते हैं तो .cpp के नाम से सेव करते हैं। तो जो आपकी फाइल क्रिएट होती है .c या .cpp, वो कोड क्या होता है, सोर्स कोड होता है। इन द सेम वे हम जब जावा में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको .java के नाम से सेव करते हैं। तो ये जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बना है, जो फाइल क्रिएट हुई .java नाम की, वो सोर्स कोड होगी। तो यही हम यहाँ बोल रहे हैं कि जावा जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड को जैसे आप इसको कंपाइल करोगे तो सोर्स कोड को किस में चेंज करेगा, बाइट कोड में चेंज करेगा, ठीक है। मीन्स एक इंटरमीडिएट कोड क्रिएट कर दिया। उसके बाद आपका जो बाइट कोड है वो मशीन इंस्ट्रक्शंस नहीं है, मशीन उस कोड को अभी समझ नहीं पा रही है। इसके पहले सी में क्या होता था कि जैसे ही आपने कंपाइल किया अपने लैंग्वेज को, .c फाइल को जैसे ही आपने कंपाइल किया तो आपका जो नया
कोड जनरेट होता था एट द एंड, वो वो जो मीन्स उसकी उसमें जो इंस्ट्रक्शंस बनते थे उसको मशीन जो है तो समझ लेती थी, ठीक है। बट ये एक इंटरमीडिएट कोड क्रिएट करता है कंपाइलेशन के समय में, तो ये इंटरमीडिएट कोड जो है तो मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए सेकेंड स्टेज में जावा क्या करता है, जावा का जो इंटरप्रेटर है वो मशीन कोड क्रिएट करता है, क्योंकि मशीन उसी कोड को रन कर सकती है जिसको वो समझ सके, ठीक है। तो मशीन सिर्फ 1 और 0 के फॉर्म को समझती है। तो यहाँ पे जो सोर्स कोड को कंपाइल किया, तो जो बीच में जो बाइट कोड क्रिएट हुआ वो मशीन कोड नहीं है, इसलिए इसमें जावा क्यों नहीं है ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा क्यों बनाया गया है वो बाद में पढ़ेंगे, मैं फर्स्ट क्लास में बताई थी आपको। तो जो आपका जो इंटरमीडिएट कोड मिला, उस कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड बनाने के लिए फिर से इंटरप्रेट किया जाता है यूजिंग जावा इंटरप्रेटर, ठीक। तो जावा इंटरप्रेटर क्या करता है, मशीन जो बाइट कोड है उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करता है, दैट कैन बी, और वही कोड जो है तो डायरेक्टली कन्वर्ट होके रन भी हो जाता है, executed by the machine that is running the Java program. So we can thus say that Java is both compiled and interpreted. सिंपली मैं बताऊं तो सबसे पहले कंपाइलेशन होता है, जब कंपाइल करते हैं तो आपका सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। अब वो जो बाइट कोड मिला उस बाइट कोड को जावा इंटरप्रेटर जो है तो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करता है, और बीच में ही जब मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में वो कन्वर्ट होता रहता है उसी समय वो एग्जीक्यूट भी हो जाता है, ऐसा इसमें प्रोसेस है, ठीक। तो याद कर लो कि जावा जो है तो बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सेकेंड फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। फर्स्ट क्लास में भी मैं बताई थी कि जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि सी और सी प्लस प्लस में नहीं है। जावा जो है तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जावा को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करोगे तो हर बार वो रिलायबल और सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रहा? आपने अपने सिस्टम में क्रिएट किया इस लैंग्वेज को, और इस लैंग्वेज को आप दूसरे सिस्टम पे जब आप एग्जीक्यूट करोगे ले जाके, तो वहां पे भी वो जो आपका प्रोग्राम है सेम टू सेम वैसा ही चलेगा और वही आउटपुट देगा जो कि आउटपुट आपके फर्स्ट सिस्टम में जहां पे ये प्रोग्राम डेवलप क्रिएट किए आपने जो रिजल्ट दे रहा था वही रिजल्ट वहां भी देगा। एक्चुअल में क्या होता है, सी एंड सी प्लस प्लस जो है तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड नहीं है। तो क्या होता है कि आपने एक सिस्टम में उसको बनाया, जैसे ही आप उसको दूसरे सिस्टम में ले जाते हैं तो वो क्योंकि वो कंपाइलर डिपेंडेंट कोड होता है, तो वो जैसे ही कंपाइलर उसका चेंज हुआ तो उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो कंपाइलर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अगर दोनों का कंपाइलर सेम है तभी वो सेम रिजल्ट देगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी। बट इसमें क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइलर पे डिपेंड करता ही नहीं है, इसलिए आप एक सिस्टम से बनाओ और दूसरे सिस्टम में कहीं भी ले जाओ, हर जगह वो सेम रिजल्ट देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि आपका जो लैंग्वेज है वो कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड दोनों है। तो जब आप उसको कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट कोड में। तो जो बाइट कोड है वो बाइट कोड जो है तो फीचर, इस बाइट कोड की क्रिएट होने की वजह से ही ये फीचर प्रोवाइड होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का और पोर्टेबिलिटी का। क्योंकि जब हम अपने एक सिस्टम पे हम इस लैंग्वेज को बनाते हैं तो हम दूसरे सिस्टम पे जब ले जाते हैं उसके पहले हम उसी सिस्टम में क्या कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल करने के बाद जो बाइट कोड क्रिएट होती है उस बाइट कोड को लेके हम दूसरे सिस्टम में जाते हैं, ना कि सोर्स कोड को लेके जाते हैं। समझ में? तो बाइट कोड को ले जाते हैं तो इस बाइट कोड की जनरेशन की वजह से, बाइट कोड के क्रिएट होने की वजह से ही आप ये जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल है। समझ में? बाद में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है मीन्स, फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि पूरे के पूरे लैंग्वेज को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। कोई भी डेटा आउटसाइड द मॉड्यूल फ्लोट नहीं करता। मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है मतलब टुकड़े टुकड़े में बांटा गया है, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक यूनिट का जो डेटा है, उससे रिलेटेड जो डेटा है उस यूनिट के अंदर ही रहता है, कोई भी चीज़ बाहर में फ्लोट नहीं करती। तो यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, मीन्स हर चीज़ क्लास के अंदर एनकैप्सुलेटेड रहती है
और उसी हम उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हम उस डेटा के को एक्सेस कर पाते हैं। और यही कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो जावा जो है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसका एक फीचर है। जैसे कि सी और सी प्लस प्लस जो थे वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, स्ट्रक्चर्ड थे, मतलब आप एक के बाद एक कहीं के भी डेटा को, आपको स्टूडेंट की जरूरत है तो भी वही लिख दे रहे हैं, आपको लाइब्रेरी बुक्स की जरूरत है तो वो भी वही लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको स्टाफ्स की जरूरत है तो वो भी उसके नीचे लिख दिए। मीन्स कोई भी इसमें ग्रुपिंग नहीं है, हर टाइप के डेटा एक साथ हौच पौच तरीके से कॉम्प्लेक्स वे में एम्बेडेड है। बट जो ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें हर डेटा और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उनको एक पैकेज में बंद किया गया है। समझ में आ रहा? और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसके डेटा को एक्सेस करते हैं। मीन्स इसको ऐसा किया गया है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाल्टी में बहुत सारे अलग अलग टाइप की मटेरियल्स हैं। आपकी एक बाल्टी में मान लो बहुत सारी बॉल रखी हुई है, उसके साथ घर के छोटे छोटे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं और कुछ और भी चीज़ उसके साथ रखे हुए हैं, मान लो स्टोन्स रखे हुए हैं। तो हम एक ही बाल्टी में तीनों चीज को ना रख के हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पैकेट बनाएंगे जिसमें पूरी बॉल्स अलग रखेंगे, एक पैकेट बनाएंगे जिसमें पूरे स्टोन्स रखेंगे और एक पैकेट बनाएंगे जिसमें यूटेंसिल्स रखेंगे और उन पैकेट को फिर क्या करेंगे, बाल्टी के अंदर रखेंगे। तो क्या होगा, सबका अलग अलग सेपरेट मॉड्यूल बन गया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। इसी को क्या बोला जाता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। आगे आगे पढ़ते जाओगे तो ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, रोबस्ट है ये, नेक्स्ट है नेक्स्ट फीचर है रोबस्ट एंड सिक्योर। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है तो रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये जो है लैंग्वेज जो है तो स्ट्रांग है, पावरफुल है। मीन्स इसको इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है, इतना सिंपल बनाया गया है, जो कॉम्प्लेक्स एरियाज थे उनको इस तरीके से हटाया गया है कि इस लैंग्वेज में आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए इस लैंग्वेज को बहुत ही पावरफुल बोला जाता है, स्ट्रांग बोला जाता है, मीन्स रोबस्ट। एंड नेक्स्ट फीचर है इसका सिक्योर। जावा जो है तो बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड किया है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज इंक्लूड किया है जिसकी वजह से इसमें सिक्योरिटी बहुत ही इंक्रीज हो गई है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट था सी में, सी प्लस प्लस में, उसको टोटली हटा दिया गया है। मीन्स ऊपर से जो है तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको पॉइंटर नजर नहीं आएगा। इंट्रेंसिकली मतलब अंदर ही अंदर पॉइंटर्स वर्क करेंगे, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, बट ऊपर से आप एक्सट्रेंसिकली मतलब इंस्ट्रक्शन के थ्रू कहीं पे भी आप पॉइंटर को हैंडल नहीं करेंगे। तो पॉइंटर को इस तरीके से हटाया गया है, ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जो सी और सी प्लस प्लस में थी उसको भी हैंडल किया है। यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का गार्बेज कलेक्शन भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स लाए गए हैं। साथ ही साथ बाइट कोड का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है इसमें, ये भी जो है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपका जो सोर्स कोड है उसको आप डायरेक्टली एक जगह से जब दूसरी जगह ले जाते हैं तो बीच में उसमें मैनिपुलेशंस किए जा सकते हैं, आपके डेटा चोरी किए जा सकते हैं, क्योंकि सोर्स कोड एग्जैक्टली जैसा आपने बनाया वो वैसा ही दिखता है, तो बीच से लोग उसको समझ सकते हैं। बट सोर्स कोड को जब हम बाइट कोड में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं तो इन बिटवीन अगर कोई किसी भी तरीके से उस कोड को रीड भी कर पा रहा है तो कुछ समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो कोड बाइट कोड होती है वो एनक्रिप्टेड होती है। समझ में आया? तो इन सभी प्रॉपर्टीज की वजह से हमारा ये जो लैंग्वेज है जावा प्रोग्रामिंग वो बहुत ही सिक्योर है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आप जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक साथ में हम अपने पूरे टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करके पैरेलली वर्क कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है मीन्स आपका जो ओवरऑल टास्क है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे बहुत सारे मेंबर्स में और सभी एक साथ मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। और ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल लैंग्वेज है। तो एक सिस्टम पे जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसको हम बांट सकते हैं और बांटने के साथ ही साथ दूसरे सिस्टम पे भी बहुत ही रिलायबिलिटी के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो इस मशीन इंडिपेंडेंसी की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर नया इंक्लूड हुआ है जावा में। मीन्स एक इंसान यहाँ पे प्रेजेंट है और एक इंसान रिमोट एरिया में प्रेजेंट है, तो दोनों इंटरनेट की हेल्प से आपस में कोरिलेट करके किसी भी एक टास्क पे क्या कर सकते हैं, किसी भी एक टास्क पे जो है तो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट है सिंपल, स्मॉल एंड फैमिलियर।
लैंग्वेज को स्टार्टिंग से ही इनका ऑब्जेक्टिव था कि लैंग्वेज को सिंपल बनाना है, स्मॉल और फैमिलियर बनाना है, ताकि बड़े से बड़े एप्लीकेशंस को हम बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ क्या कर सके, हम डेवलप कर सके। सिंप्लिसिटी मेंटेन किया इन्होंने और लैंग्वेज को बहुत ही छोटा बनाया है, बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं किया है और फैमिलियर बनाया है, इंटरैक्टिव बनाया है, ताकि चीज़ों को आसानी से समझी जा सके और आसानी से हम एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें, और ये लैंग्वेज बहुत ही इंटरैक्टिव है। मल्टी थ्रेडिंग मीन्स थ्रेड्स मीन्स छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, मीन्स पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। मीन्स आप जो एक एप्लीकेशन बनाते हैं वो छोटे छोटे थ्रेड्स में, जो एप्लीकेशन बनाया है वो छोटे छोटे जो थ्रेड्स है उसमें डिवाइडेड है। वो सभी थ्रेड्स जो होते हैं आपस में पैरेलली परफॉर्म करके एट द एंड एक कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है, सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग नहीं है। सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि एक जो अगला स्टेप है, आपने जो बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, तो जो नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उसके पहले वाले लाइन पे डिपेंड करता है। मीन्स पहला वाला लाइन जब तक रन नहीं होगा तो दूसरा वाला लाइन उसका वेट करता रहता है, फिर दूसरा रन होता है तो तीसरा वाला लाइन उसका वेट करता है। बट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा नहीं है। जो होल एप्लीकेशन है आपका वो छोटे छोटे थ्रेड्स में डिवाइडेड है, छोटे छोटे प्रोसेसेस में डिवाइडेड है। हर एक प्रोसेस अपने अकॉर्डिंग पैरेलली परफॉर्म करता है और फिर वो कंबाइन होके एट द एंड रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इस वजह से क्या होता है, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। मीन्स ये रन बहुत ही जल्दी हो जाता है और लोड नहीं होता, हैवी नहीं होता वाइल एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें और लैंग्वेज बहुत ही इंटरैक्टिव है। नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस। इतने सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है तो परफॉर्मेंस तो लैंग्वेज का हाई होगा ही। जावा परफॉर्मेंस इज इम्प्रेसिव फॉर एन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज mainly due to the use of intermediate bytecode. bytecode जो नया प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से ये लैंग्वेज का परफॉर्मेंस बहुत ही इंक्रीज होता है। अकॉर्डिंग टू सन, जावा स्पीड इज comparable to the native C++. Java architecture is also designed to reduce overheads during time. फर्दर इनकॉर्पोरेशन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग आने की वजह से इसका परफॉर्मेंस बहुत ही इंक्रीज होता है। ठीक है, डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल। लैंग्वेज डायनेमिक है क्योंकि बहुत सारे ये अपनी एक्टिविटीज रन टाइम पे करता है। रन टाइम पे बहुत सारी एक्सेसिंग करता है, क्लासेस की एक्सेसिंग करता है, फंक्शंस की एक्सेसिंग करता है, बहुत सारी लाइब्रेरीज से चीज़ों को इंक्लूड करता है अपने लैंग्वेज में। मीन्स जब ये एग्जीक्यूट होता रहता है उस समय में बहुत सारी ये एक्सेसिंग करता है, जिसकी वजह से इस लैंग्वेज को डायनेमिक बोला जाता है। ठीक है, और ईज ऑफ डेवलपमेंट लास्ट है। जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन J2SE 5.0 सपोर्ट्स फीचर्स सच एज जेनरिक्स, एनहेंस फॉर लूप्स, ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, टाइप सेफ इनम्स, ये सभी फीचर्स इंक्लूडेड है इस लैंग्वेज में। वराक्स, स्टैटिक इंपोर्ट एंड एनोटेशंस, ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं इजी डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, इजी डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो इतने फीचर्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैं जो आप एक बार मैंने समझाया है, आप दोबारा फिर से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। जो भी डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जब ये जो जावा फीचर्स है आपके एग्जाम में आता है तो देखिए आप इस बुक में कितना सिस्टमेटिकली बना हुआ है, फिर भी आप अपना नोट्स बनाते जाइए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप अपने समझ के हिसाब से नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, थैंक यू। डाउट्स जो भी होंगे आप बताइएगा, पूछिएगा। ओके, थैंक यू।